Hello students, in last two lectures we discussed the all theoretical portions. Today we will solve the exercise 4.1 from the textbook. See the textbook, sum number 1. Express the following in a modulus and interval form. Express the following in modulus and interval form. So the first one is 0.4 neighborhood of 4. Neighborhood of 4. तो we know very well this is the form of neighborhood form है. तो फर्स्ट मैं इन्हें neighborhood form में मेंशन कर दूँ तो n a और ये डेल्टा. So that is the neighborhood. Delta is the neighborhood of a. Delta. So we know very well that's a delta neighborhood of a. So we can decide the value of a is equal to क्या है यहाँ पे 4 and the value of delta is equal to 0.4. So now a is equal to 4 and delta is equal to 0.4. So neighborhood form n is equal to 4 and 0.4. This is the neighborhood form. Now we have to express in a modulus and interval form. So we know very well the modulus form, formula of modulus form. Last time we discussed the modulus form. The formula of modulus form is x minus a less than delta. Formula of interval form is a minus delta or a plus delta. We have both the value of a and delta. So modulus form, first we'll discuss the modulus form. So modulus form is module x minus a less than delta. Now put the value of a and delta. So the modulus x minus a is equal to 4 and less than delta is equal to 0.4. That is the modulus form. And now interval form. So in interval form, so we know the formula of interval form is a minus delta and a plus delta. We have both the values. A is equal to 4 and delta is equal to 0.4. So a is equal to 4 minus 0.4 and 4 plus 0.4. So 4 minus 0.4 is equal to 3.6 and 4 plus 0.4 यानी कि 4.4. So the interval form, the value of interval form is 3.6 and 4.4 and the modulus form is x minus 4 in a module x minus 4 less than 0.4. That is the answer. Okay, now second number. See the second number is 0.02 neighborhood of 2. Neighborhood of 2. So that's very simple. Delta neighborhood of a. So the value of a is equal to 2 and the value of delta is equal to 0.02. Now you can find both the form, modulus and interval form. So for modulus form, and interval form. The modulus form formula is x module x minus a less than delta. So we know a is equal to 2. So in module x minus 2 less than 0.02. That is the modulus form. And interval form is
a minus delta and a plus delta. तो a is equal to 2 minus 0.02 and 2 plus 0.02. So 2 minus 0.02, 2 minus 0.02, that answer is 1.98. Answer is 1.98, and 2 plus 0.02, the answer is 2.02. That is the interval form. So that's very simple. Now see the one next, डायरेक्ट 4 नंबर ले रहा हूँ. थर्ड मीन्स तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है. थर्ड वन सिंपल है, यहाँ पे देख लो. थर्ड मीन्स सेल्फ प्रैक्टिस करनी है. 0.05 नेबरहुड ऑफ 0, नेबरहुड ऑफ 0. तो सिंपल a इज इक्वल टू 0 लेना है एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.5. चलो सॉल्व कर लेते हैं. ये तुम्हारा मॉड्यूलस फॉर्म क्या होने वाला है, मॉड्यूलस एंड दैट्स अ इंटरवल फॉर्म. दोनों कंप्लीट कर लेते हैं. नाउ मॉड्यूलस फॉर्म क्या है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा. तो x इज इक्वल टू मॉड्यूल x माइनस 0 लेस देन 0.05. So x minus 0, that's called module x less than 0.05, and that is the important. when ये चीज़ माइंड में रखना कि मॉड्यूल x अकेला क्या मेंशन कर रहा है कि उसमें से हमने किसको माइनस किया हुआ है, 0. जब भी मीन्स ये मॉड्यूल फॉर्म ऐसा होगा तो वी विल कीप इन अ माइंड दैट्स कि ये मीन्स 0 सब्सट्रैक्ट हुआ है इसमें से. ये भी टॉपिक आगे मीन्स हेल्पफुल होने वाला है हमें, ये चीज़ मीन्स इंपॉर्टेंट है. सो इट्स अ मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा. तो a माइनस डेल्टा दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस 0.05 एंड 0 प्लस 0.05. सो द आंसर इज माइनस 0.05 एंड यहाँ पे होगा प्लस 0.05. इट इज़ द इंटरवल फॉर्म. क्लियर? दैट्स वेरी सिंपल, कोई टिपिकल टॉपिक है नहीं. द सेम वे लास्ट 4 1 एंड 0.001 नेबरहुड ऑफ -1. तो a इज इक्वल टू -1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.01. तो उसके दोनों फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे. तो ये रहा तुम्हारा मॉड्यूलस और ये तुम्हारा इंटरवल फॉर्म. चलो चेक कर लेते हैं. मॉड्यूलस फॉर्म की फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा. तो x माइनस ए इज इक्वल टू, ए का आंसर है -1 तो ब्रैकेट में यहाँ पे कर रहे हैं -1 लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू 0.01. तो माइनस माइनस प्लस, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें हेल्पफुल होने वाला है. जब भी x प्लस 1 है तो हम क्लियरली समझ लेंगे कि मॉड्यूलस में ये प्लस हुआ, दैट मीन्स ये वैल्यू नेगेटिव है. यहाँ से पता चल रहा है ना, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो रहा है. तो जब मॉड्यूलस में से हम नेबरहुड या इंटरवल करेंगे तब ये एक ही वैल्यू फाइंड करने में हमें ये साइन मीन्स इंपॉर्टेंट है, +1 है, बिकॉज द माइनस माइनस बिकम प्लस लेस देन 0.01. एंड इंटरवल फॉर्म a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा. बहुत ही सिंपल है. अब a माइनस डेल्टा तो a इज इक्वल टू -1 और ये माइनस 0.01 और -1 प्लस 0.01. तो आंसर क्या है, -1. तो -1.01 और ये -1 में से माइनस कर लो तो 0.99, सॉरी -0.99. दैट इज द इंटरवल फॉर्म. दैट्स वेरी सिंपल. नाउ हम चेक दिस सम नंबर 2. सी द सम नंबर 2 express the following in interval and neighborhood form. Express the following in interval and neighborhood form simply modulus form is given and from the modulus form we have to find the
interval and neighborhood form, and it's very simple. See the first one, x minus 2 in a module x minus 2 less than 0.01. So that's a very simple. First we decide the a and delta. So we know the modulus form. The formula of modulus form is x minus a less than delta. Now comparing this, we know very well a is equal to 2 and delta is equal to 0.01. So a is equal to 2 and delta is equal to 0.01. now we can find both the form interval and neighborhood. तो पहले neighborhood की फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा neighborhood of a, delta is neighborhood of a and it is recorded or noted n a delta. So n a is equal to 2 and delta is equal to 0.01. This is the neighborhood form. And interval form, तो interval form a minus delta and a plus delta. In open interval it's a minus delta and a minus delta a plus delta. A is equal to 2 and delta is equal to 0.01. so a is equal to 2 minus 0.01 and 2 plus 0.01. so that's very simple. 2 minus 0.01 1.99 and 2.01. this is the interval form. Now the same way, see the second one, x प्लस 5 मेंशन कुछ कर रहा है, अभी मैंने डिस्कस किया था, लेस देन 0.1. अगेन मीन्स उसे कंपेयर करेंगे तो x माइनस a लेस देन डेल्टा. तो यहाँ पे साइन चेक करो, यहाँ पे साइन प्लस है और हमारे फॉर्मूला में साइन क्या होनी चाहिए, माइनस. दैट मीन्स यहाँ पे कुछ वैल्यू में चेंज हुआ है एंड वी नो वेरी वेल दैट्स अ माइनस x minus 5 in a modulus, x minus -5. so minus become plus, so we can say x plus 5 in a module less than 0.1. so a is equal to, now a is equal to क्या हो रहा है, -5. a is equal to -5. that's very simple. a is equal to -5 and delta is equal to 0.1. तो ये ए और डेल्टा फाइंड करने के लिए बाद मीन्स दोनों सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और वो तुम्हें मीन्स सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ. समझ लो कि मीन्स ये तुम्हारा नेबरहुड फॉर्म है, तो एन इज ए डेल्टा, तो एन ए इज इक्वल टू -5 और डेल्टा इज इक्वल टू 0.1. हो गया क्लियरली. और इंटरवल फॉर्म क्या है, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा. एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आपको आता है ना अच्छे से, तो बस ये कर सकते हैं -5 माइनस 0.1 एंड -5 प्लस 0.1. तो ये मीन्स माइनस और माइनस -5.1 और यहाँ पे होगा -4.9. दैट इज द आंसर. नाउ सी द थर्ड वन it's a module x less than 1/3. that's very simple. we discuss only x is given, it means यहाँ पे x minus 0 less than 1/3. now compare with the formula x minus a less than delta. so a is equal to 0 and delta is equal to 1/3. now you can find both the modular neighborhood and interval form. तो in neighborhood and a delta, तो सिंपली ये रिकॉर्ड कर सकते हो, एन ए इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 1/3. तो 1/3 नेबरहुड ऑफ 0 एंड इंटरवल फॉर्म है हमारा ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा. तो ए इज इक्वल टू 0 माइनस 1/3 एंड 0 प्लस 1/3. सो -1/3 एंड प्लस 1/3, दैट्स आंसर. नाउ नेक्स्ट सेम है 4 नंबर, वो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ. मीन्स पॉजिटिव साइन है, समझ लेना. x प्लस 3
लेस देन 0.15, तो सेम एज x प्लस 5 लेस देन 0.1। तो ये तुम्हें मीन्स सेल्फ प्रैक्टिस में करना है, बिकॉज ये क्या होने वाला है, x माइनस माइनस 3 फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांसफ़र कर लिया 0.15। अब इसे कंपेयर कर सकते हैं x माइनस ए, सो सी माइनस माइनस, तो a इज इक्वल टू क्या है मीन्स यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू -3 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 15। सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -3 and delta is equal to 0.15. Now you can find both the form. See the sum number 3 and the first, उसमें मेंशन किया है कि express the following modulus and neighborhood form. express the following modulus and interval form. मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म। तो फर्स्ट वन, तो मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल समझ लो कि मॉड्यूलस इंटरवल है तो हमें कौन से फॉर्म में वैल्यू दी है वो चेक कर लो। 3.8 लेस देन x लेस देन 4.8, यानी कि मीन्स ये सिंपली हमारे पास एक वैल्यू है 3.x इज बिलोंग्स टू बिटवीन 3.8 टू 4.8, यानी एग्जैक्ट देखने जाओ तो ये ऑलरेडी इंटरवल फॉर्म ही है, और मीन्स हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, मॉड्यूलस और नेबरहुड फॉर्म में, नेबरहुड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नेबरहुड फॉर्म। इंटरवल को कट कर देते हैं यहाँ से, तो ये ऑलरेडी इंटरवल फॉर्म ही है 3.8 से लेके 4.8 तक, यानी कि a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा इज अ 3.8 और ये है 4.8। समझ लेना अच्छे से, बहुत ही सिंपल है। तो आंसर a माइनस डेल्टा का आंसर है 3.8, दो इक्वेशन बनेंगे, और a प्लस डेल्टा का आंसर कितना है 4.8। तो कंपेयरिंग और सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यू यहाँ पे है तुम्हारे पास सिंपली a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू क्या है आंसर 3.8 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आंसर क्या है 4.8। तो सिंपली प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब a तो ये क्या हो रहा है 2a इज इक्वल टू 618.6, सो a इज इक्वल टू 8.6 डिवाइड बाई 2, सो a इज इक्वल टू 4.3। सो a की वैल्यू मिल गई है, तो मीन्स हम डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपली डेल्टा की वैल्यू कैसे करेंगे, तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है यहाँ पे a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8 या a प्लस डेल्टा 4.8 है, a इज इक्वल टू 4.3 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8। डेल्टा को यहाँ पे ट्रांसफ़र करो 3.8 यहाँ पे, सो 4.3 माइनस 3.8 इज इक्वल टू डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू, ये दोनों को डिफरेंस कितना आ रहा है चेक कर लो, 0.5। डिफरेंस कितना है 0.5। सो द डेल्टा इज इक्वल टू 0.5 एंड a इज इक्वल टू 4.3। नाउ वी कैन फाइंड बोथ द फॉर्म मॉड्यूलस एंड इंटरवल। नाउ मॉड्यूलस फॉर्म क्या है, तो मॉड्यूलस फॉर्म सिंपल है x माइनस a less than delta, and we know very well value of a and delta. A is equal to 4.3 and delta is equal to 0.4. Put the, so modulus x minus 4.3 less than delta is equal to 0.5. So this is the modulus form. And now neighborhood form. तो neighborhood form simple है, neighborhood delta is the neighborhood of a, delta is neighborhood of a. So and a is equal to 4.3 and delta is equal to 0.5. This is the neighborhood form and it's a modulus form. Now same way all जितने भी मीन्स हम चेक करेंगे डायरेक्टली, मीन्स मैं 4 नंबर कर रहा हूँ। सी द सेकंड एंड थर्ड तुम्हारे लिए होमवर्क में है। सेकंड एंड थर्ड क्या है, तो 1.95 लेस देन x लेस देन 2.05। समझ में आ रहा है यहाँ के 0.05 वैल्यू है, ये भी समझ में आ जाएगा। माइनस 0.4 लेस देन x लेस देन 1.4 है, अरे 1.4
तो ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क में है। और 4 नंबर 1.998 लेस देन x लेस देन 2.002, तो ये मीन्स सभी में, चलो ये नेगेटिव वाला है तो वो कर लेते थर्ड वन, ये दोनों तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। थर्ड वन में क्या है, तो a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 0.4 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4। अब मीन्स दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो सिंपली a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4 और a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 0.4। तो प्लस माइनस कट, 2a इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.4 कितना होने वाला है 1। सो a इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 0.5 या इज इक्वल टू 1.1/2, दोनों आंसर राइट है। अब a इज इक्वल टू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू, चलो के फर्स्ट इक्वेशन में कर रहे हो, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.5, पुटिंग a इज इक्वल टू 1.5, पुटिंग a इज इक्वल टू 0.5 इन द इक्वेशन नंबर 2, समझ लो हमारे लिए ये है a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4 एंड पुटिंग a is equal to 0.4. So 0.4 plus delta is equal to 1.4. तो delta is equal to 1.4 minus 0.5. So delta is equal to 0.9. Here the a is equal to 0.5 and delta is equal to 0.9. So you can find the another value, it means form a is equal to 0.5 and delta is equal to 0.9. so modulus form x minus a less than delta, तो in modulus form x minus 0.5 less than 0.9 और neighborhood n is means delta is neighborhood of a, delta is neighborhood of a n, a is equal to 0.5 or 0.9. this is the answer. Now sum number 4, 5, 6, sum number 4, तो 4 नंबर एक्सप्रेस सिंपल है, एक्सप्रेस नेबरहुड फॉर्म दिया हुआ है एन 0.5 इज द नेबरहुड ऑफ 16, यानी कि डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ ए इन द इंटरवल एंड मॉड्यूलस फॉर्म, दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इजीली कर सकते हो, सिर्फ मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ। एन इज द नेबरहुड, डेल्टा इज द नेबरहुड ऑफ ए, तो डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ ए, सो ए इज इक्वल टू 16 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.5। सो ये फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मॉड्यूलस फॉर्म क्या है हमारा, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, ये तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ। 5 नंबर तो टिपिकल है, वही करवा रहा हूँ बाकी होमवर्क में। 5 नंबर मीन्स क्या है, तो इफ़ ये नेबरहुड फॉर्म है बट फाइंड करना है, तो ये मैं सॉल्व करवाने ला हूँ 3 and b, दैट मीन्स द डेल्टा इज मिसिंग, दिस इज द नेबरहुड फॉर्म एंड द डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ 3, डेल्टा इज हियर, द डेल्टा इज इक्वल टू b, डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ a यानी कि 3 इज इक्वल टू, एक नेबरहुड फॉर्म है और सेकंड मीन्स हमारा इंटरवल फॉर्म है, यहाँ पे पता चल रहा है 2.95 और द सेकंड वैल्यू इज k। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड k, फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड k, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है, b और k दोनों की वैल्यू। सो सिंपल है, फर्स्ट वी नो वेरी वेल n इज द नेबरहुड ऑफ, यहाँ पे द डेल्टा इज द नेबरहुड ऑफ a, सो a इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास है a इज इक्वल टू 3 और डेल्टा इज इक्वल टू अभी क्या है b, और ये हमारे पास इंटरवल फॉर्म है, यानी कि a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू k। सो फर्स्ट a इज इक्वल टू 3, वी हैव द a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे लिए, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 3 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95, सो डेल्टा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3 माइनस 2.95, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0.05,
तो डेल्टा इज इक्वल टू बी है यहाँ पे, तो दैट्स वाई वी कैन से बी इज इक्वल टू 0.05 हो गया सिंपली आंसर। नाउ द सेकंड वन, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के दिया हुआ है, सो ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के, तो मीन्स पुट नाउ दैट्स वाई वी कैन से द डेल्टा इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0.05, सो ए इज इक्वल टू 3 प्लस 0.05 इज इक्वल टू के, तो दैट्स वाई के इज इक्वल टू 3.05, तो ये तुम्हारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू पॉइंट से चेक करो तो ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सी द लास्ट वन, हमारे एक्सरसाइज का लास्ट सम है 6 नंबर, एंड इफ इन अ मॉड्यूलस x माइनस 10 इज लेस देन k1, यानी ये हमारा मॉड्यूलस फॉर्म है, इज इक्वल टू, ये हमारा इंटरवल फॉर्म हुआ k2 और ये है 10.01, देन फाइंड द k1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और k2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगेन बहुत ही सिंपल है, पहले तो मीन्स ये हमारा कौन सा फॉर्म है भाई, मॉड्यूलस फॉर्म है, दोनों को सेपरेट लिख लेते हैं। फर्स्ट राइट डाउन दी सेपरेट मॉड्यूलस फॉर्म x माइनस 10 लेस देन k1, सो x minus a less than delta, so we can say a is equal to 10 or delta is equal to k1, and here a minus delta or a plus delta, so a minus delta is equal to k2 and a plus delta is equal to 10.01। आ रहा है समझ में यहाँ तक क्लियरली? ओके, तो आगे चेक करेंगे। नाउ पुट द a is equal to 10 इन इक्वेशन, तो a इज इक्वल टू 10 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01, 10 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, सो डेल्टा इज इक्वल टू 10.01 माइनस 10, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0.01, तो ये डेल्टा का आंसर मिल गया है। सो डेल्टा इज इक्वल टू यानी कि k1, डेल्टा इज इक्वल टू k1 इज इक्वल टू 0.01, तो डेल्टा और k1 दोनों का आंसर हमारे पास है, क्योंकि डेल्टा एंड k1 दोनों सेम है। एंड नाउ k2 फाइंड करना है, तो ये फाइंड करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू k2, सो a इज इक्वल टू 10 और डेल्टा इज इक्वल टू 0.01, सो 10 माइनस 0.01 इज इक्वल टू k2, सो 9.99 इज इक्वल टू k2, तो द वैल्यू ऑफ k2 इज इक्वल टू 9.99 एंड k1 इज इक्वल टू 0.01, दिस इज द आंसर। सो 4.1 एक्सरसाइज तुम्हें होमवर्क में कंप्लीट करनी है, और सपोज़ कोई भी डाउट्स हैं तो मीन्स हम वो सॉल्व करेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, विल सी द नेक्स्ट पॉइंट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।